عمر اقبال خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر، 100 ارب ڈالر جو محسن نقوی صاحب نے کہا یہ باہر چلا گیا، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں ہمارا 100 ارب ڈالر باہر جا سکتا ہے موجودہ حالات میں؟ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا بڑا سینسٹیو ہے. آپ کو یاد ہوگا ہوا بازی کے ہمارے وزیر ہوتے تھے سرور خان صاحب، انہوں نے پی آئی اے کے پائلٹس کے بارے میں ایک بڑا ایسا بیان دیا تھا جب 5 سال تک پاکستان بھگتتا رہا، یورپی یونین نے پابندیاں لگی. میرے لیے محسن نقوی صاحب بڑے قابل احترام ہیں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مثلا یہ $100 بلین کی ایسی فگر دے دینا یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے کوئی $100 بلین کو باہر جانے کے چانسز ہیں. ہماری ایجنسی اس کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ ریکوری کی فگریں، میں کئی دفعہ یاد ہے مجھے نیب والوں وہ جی اس کے اکاؤنٹ میں اتنے $1 بلین کی، وہ بعد میں جب ریفرنس فائل ہوتا تھا تو سب 5 کروڑ روپے کا ریفرنس فائل ہوتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ آنریبل منسٹر کو نا کوئی مس لیڈ کیا گیا ہے. اتنی اماؤنٹ نہیں پاکستان سے باہر، جیسے انہوں نے واضح بھی کیا تھا کراچی میں 2 بندے ایسے ہیں اگر ان کو پکڑ لیا جائے تو اوپن ہو جائے چیزیں. اگر ایسی بات ہے تو ہو سکتا ہے پھر ایجنسیوں کی پہلی تحویل میں ہوں وہ لوگ، یا اگر نہیں بھی ہیں تو مجھے لگتا ہے فوراً ان کو تحویل میں لے کر ان سے ضرور تفتیش کرنی چاہیے تاکہ یہ بات واضح ہو. لیکن میرے خیال میں اس کے اعلانات سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر ٹھوس اقدامات کیے جائیں اور اس کو بڑا ہی سیگا راز میں رکھ کے اس پر کارروائی کی. اچھا عمر صاحب، آپ پیسہ $100 ارب کو آسان نہیں ہے باہر لے جانا ہنڈی کے ذریعے یا دیگر ذرائع کے ذریعے، جب ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ موجود ہے، بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ موجود ہے، اور آپ تو ٹیکس پیئر کا کام کرتے ہیں. کوئی ٹیکس پیئر ایسا پاکستان میں ہے جو تاجر ایسا ہے جو پیسہ لے جا سکتا ہے باہر؟ کہنا بڑا آسان ہے. یہ فی الوقت جتنے ہمارے سختی ہے، میں اس وقت کہوں گا اس وقت ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں اور ان کی بڑی سختی ہے ان چیزوں کے اوپر. میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اس کی 1/10 اماؤنٹ چلی گئی ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، وہ بھی کم میرے خیال. دیکھیں اس کے اوپر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پوری تحقیق کے بعد ہمیں اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے پریس کانفرنس سے کرنے کی. عمر اقبال خواجہ صاحب، اس سے پہلے بھی ایک بیان آیا تھا $19 ارب 2018-19 میں ایک امنسٹی دی گئی تھی، اس میں جن لوگوں نے پیسے ڈکلیئر کیے تھے وہ پیسہ واپس باہر سے لایا نہیں گیا، پاکستان نہیں آیا، تو اس کو بھی واپس لایا جا سکتا ہے. اس میں بھی بجٹ سے پہلے اس میں سے کوئی $10 ارب آ سکتے ہیں. اور اگر امنسٹی میں پیسہ ڈکلیئر تھا، اس نے اپنے ریٹرن میں وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، امنسٹی وصول کی جس تاجر نے بھی، تو پھر وہ پیسہ آ سکتا ہے واپس. آپ وہ دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. 2018 اور 19 میں جب آئی تھی امنسٹی، اس میں لوگوں نے اپنے فورن ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے جن میں وہاں کے زمینیں، جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے. اس میں آپ ان لوگوں نے ٹیکس ادا کیا اور اس کے بعد وہ کہہ لیں کہ ریشنلائز ہو گئے، ریگولرائز ہو گئے. وہاں پر کوئی ایسی شرط نہیں تھی کہ وہ بندہ پاکستان پیسہ واپس لائے. اگر وہ لا سکتا ہے، ویسے حکومت پاکستان چاہے تو وہ تاجر لا سکتا ہے. اس ایمنسٹی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تمام جو میرے خیال میں تو 10 سے 13 ارب ڈالر تھا، آپ 19 کہہ رہے ہیں، وہ ہماری ایک ٹیکس ریونیو کی کلیکشن کا سبب بن گیا. وہ لوگ جو پہلے بالکل ٹیکس نہیں دے رہے تھے اب اپنی فورن انکم کے اوپر کروڑوں روپیہ سالانہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کو کوئی ایسی ضرورت ہے کہ ان ایسٹس کو پاکستان لانے کی طرف کوشش کی جائے، کیونکہ اس سے تو پاکستان کو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ریونیو جنریٹر ہے. آئی ایم ورکنگ فار مینی آف ڈزنز آف سچ پیپل. ان سب کے ٹیکس کروڑوں روپے میں، ایک بندہ کروڑ ہر روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ نے انہی ایسٹس کے اوپر سی وی ٹی بھی لے رہے ہیں 1% سال کی، اور انہی ایسٹس کے اوپر انکم ٹیکس بھی لے رہے ہیں. انہی ایسٹس کے اوپر ہر طرح کا ٹیکس وصول ہو، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ان کو چھیڑنے کی؟ یہ پھر اگر جو باہر سے پیسہ لانا چاہ رہے ہیں، اگر امنسٹی کا پیسہ ڈکلیئر ہے اس کو لانا چاہ رہے ہیں، یا $100 ارب جیسے چلا گیا اس کو لانا چاہ رہے ہیں، تو کیا امنسٹی دوبارہ دینی پڑے گی؟ کریکٹیو میئرز لینے پڑیں گے. اگر دیکھیں یہ حقیقت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایف بی آر فیل ہو چکا. اگر یہ ایف بی آر فیل ہو چکا ہے، آپ کا اسٹیٹ بینک فیل ہو چکا ہے، آپ کا ایف آئی اے فیل ہو چکا ہے، آپ کا کسٹمز فیل ہو چکا ہے. اگر دس از اے فیکٹ تو پھر یہ 4 ادارے کیا کر رہے ہیں؟ نیکٹا کیا کر رہا ہے؟ یہ جو اتنے ہم نے ادارے بنا دیے ہیں اسی کام کو روکنے کے لیے. آپ ابھی ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ $3000 سے زیادہ باہر لے جا نہیں سکتے. آپ نے ٹریول کرنا ہے، آپ کو ڈکلیریشن دینی پڑتی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں، جو اتنے اس وقت میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہم نے فیٹف کی کمپلائنس میں اپنے اتنے سخت اسٹریٹ لاز بنائے کہ اب تو پاکستان سے پیسہ لانا اور لے جانا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بھی پروٹوکول والا آدمی بھی کسی حد تک ہی ہے، لیکن یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ کوئی پیسہ واپس لے. اچھا عمر اقبال خواجہ صاحب، پاکستان میں کوئی ایسی پالیسی ہے جس سے جو غیر ملک انویسٹر ہے
पाकिस्तान का रुख करे? इस वक्त सर दस्त कोई पॉलिसी, बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं है और हुकूमत की सिर्फ तवज्जो ही नहीं है। इस मुल्क में आपने जो मैक्सिमम इनकम टैक्स का रेट है कि ऑन पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम के ऊपर, वो मैक्सिमम रेट सुपर टैक्स वगैरह डालकर 69% है। ऐसे मुल्क में 69% के ऊपर टैक्स के ऊपर तो कोई पैसा लाएगा ही नहीं पाकिस्तान में। क्यों लाएगा? टेल मी वन गुड रीजन कि अगर आप पाकिस्तान पैसा लाना चाहते हैं, यहाँ पर खित्ते की सबसे ज्यादा हाईएस्ट, बल्कि दुनिया में इतना रेट नहीं है कहीं पर भी, 69% टैक्स का रेट है, तो क्यों आप पाकिस्तान में पैसा लेंगे? अगर 69% टैक्स है, क्या उसके मुताबिक सहूलियात भी हैं? मैं तो सहूलियात तो सिफर हैं। इन्वेस्टर अगर आप ना चले वो टैक्स दे भी, लेकिन उसको वो मैयर, वो सहूलियात, वो चीजें मिलती हैं, वो जब चाहे अपना सरमायाकार यहाँ से निकाल सकते हैं। पहली बात सिक्योरिटी, एजुकेशन, आपकी हेल्थ कह लें, ये चीजें स्टेट की जिम्मेदारी होती है, जिसमें पाकिस्तान की स्टेट बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर से लो, हेल्थ भी प्राइवेट सेक्टर से लो, सिक्योरिटी गार्ड भी अपना रखो, तो वो तो आप इस लिहाज से इन्वेस्टर इस हाईएस्ट टैक्स रेट में नहीं आएगा। उसके बाद सबसे बड़ा इम्पीड, आप तो बात करें पाकिस्तान से $100 बिलियन चला गया। पाकिस्तान ने 1922 से लेकर अब तक का जो डिविडेंड की मद में फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा देना, वो बिलियंस ऑफ डॉलर में है। उसके अलावा 3 ट्रांजैक्शंस का $2 बिलियन ऐसा पेंडिंग पड़ा हुआ है जो आज तक स्टेट बैंक ने प्रूव नहीं की, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तान से कैसे 100 बिलियन? देखिए रुपया और चीज है, डॉलर खरीदने के लिए अगर किसी ने $100 बिलियन पाकिस्तान से ट्रांसफर करना है, उसको ब्लैक मार्केट में ये पहले पैसा खरीदना पड़ेगा और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान में डॉलर की और शॉर्टेज होगी और पाकिस्तान के रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इस वक्त ये सूरत हाल नहीं है, ये उल्ट बात हम कर रहे हैं, बल्कि स्टेट बैंक ने पिछले 3 साल में ओपन मार्केट से बेशुमार डॉलर खरीदा है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में जो डॉलर आ रहा है वो सारा का सारा स्टेट बैंक ले रहा है। पाकिस्तान से कोई ऐसा डॉलर, कोई ऐसे किराए शवायद नहीं है कि पाकिस्तान से कोई बड़ी अमाउंट बाहर गई। अच्छा उमर इकबाल खान साहब, फिर आप क्या समझते हैं, हमारे जो ये पाकिस्तान में टैक्स रेट ज्यादा है, लागत ज्यादा है, तो फिर हम किस तरह अपने कर्जों पे इंहिसार करेंगे, ये से दलदल से निकलेंगे? हुकूमत के पास शायद बड़े बड़े दिमाग हैं, बड़े बड़े माइंड्स हैं। हुकूमत को चाहिए कि फ्री एक्सपोर्ट जोन्स बनाए। देखिए आप दुनिया सारी में देखिए, डिफरेंट जो इकोनॉमीज हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी फ्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाती हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता, वो खाली एक्सपोर्ट के ऊपर करते हैं। इस तरह के इंसेंटिव दें लोगों को। जो पिछली हुकूमत में एक अच्छा जो इक़दाम था वो रोशन डिजिटल अकाउंट था, इसमें यह था कि आप जितना पैसा लाएंगे उसके थ्रू वो बगैर किसी इजाजत के वापस भी ले जा सकते थे। इस तरह का कोई इनिशिएटिव लें, को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढे। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं इंडोनेशिया पैसा क्यों जा रहा है? इंडोनेशिया की इकोनॉमी है $2.3 ट्रिलियन की, मुल्क की आबादी हमारे जितनी है, थोड़ी सी ज्यादा कर ले, 32 करोड़ है हमारी $460 बिलियन की इकोनॉमी है। आप 6 गुना हमसे बड़ी इकोनॉमी है और वहां पर जितना मर्जी आप पैसा ले जाए और वापस ले जाए, वहां पर कोई कदगद नहीं। सबसे ज्यादा जो है हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन नहीं है। प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन से क्या मुराद है, यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है, मुख्तलिफ हीले बानों से मुख्तलिफ इदारे, कभी कोई नोटिस दे देता, कभी कोई। फॉरेन इन्वेस्टर तो ये चीजें बर्दाश्त ही नहीं करता कभी। वो कहता है अगर मेरा पैसे ही नहीं महफूज, 2 चीजें देखता है, पैसा महफूज हो, पैसा वापस आ सकता हो। पाकिस्तान में दोनों ही नहीं है। टैक्स रेट्स आपके ज्यादा है, बिजली के रेट ज्यादा है, आपकी जो लेबर है वो इंतहाई सुस्त है। आपके मुल्क में कैसे क्या इंसेंटिव है को पैसा लगाइए? या तो काम भी करवाना हो तो पैसे देके जल्दी हो जाता है, पैसे देके। कुछ मोबाइल तो ऐसे हैं जहाँ ये पैसे लेने देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, काम करवाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। हमारे मुल्क में कोई अनोखी रिश्वतखोरी है, दुनिया में और मुल्कों में भी है, लेकिन मैं फिर आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, जब तक अपना डॉलर का बैलेंस नहीं आप ठीक करेंगे, आप अपने आप को इस काबिल नहीं बना लेंगे कि आपकी इनवर्ड ज्यादा हो, आउटवर्ड कम हो। 3-4 साल में जो डॉलर मुस्तकम है, आप क्या समझते हैं ये हुकूमती बेहतर पॉलिसी नहीं है? मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस हुकूमत की सबसे बेस्ट पॉलिसी समझता हूँ तो ये है कि उसने रुपये का रेट स्टेबल रखा हो। ये 3-4 साल से जो डॉलर संभाला नहीं जा रहा था वो एक जगह पे स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल रखा हुआ। मैं तो इस चीज की तारीफ करता हूँ। इससे पाकिस्तानी महंगाई से बचे हुए हैं, महंगाई से जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का आलम है आपकी सोच से बाहर है। और आज अगर डॉलर साथ डिवैल्यूएशन में आ गया तो वो तो बिल्कुल ही हम किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहेंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ स्टेबल ना रखे अब डॉलर को, अपना डॉलर का इन्फ्लक्स बेहतर करे, अपनी एक्सपोर्ट्स को हमें इंक्रीज करना। हमारे पास कोई हल नहीं है इसके अलावा। हमें अपनी रेमिटेंसेस बढ़ानी है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और अपनी इंपोर्ट्स को कम करना है, खुद नसारी पर जाना है, फिर उसके बाद कहीं जाकर फॉरेन इन्वेस्टर हमारी तरफ आगे होगा। मेरे इकबाल साहब, जो मशरक़ वस्ता की जो जंग है, अब जैसे हालात बने हैं, आप समझते हैं डॉलर अब मुस्तकम रह पाएगा? देखिए, फिर आप पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करें, पाकिस्तान रुपए के अगेंस्ट डॉलर कम होने के उसकी वैल्यू चांसेस कम है। पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम
निज़ाम है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ रागब करता है या पैसा बाहर ले जाने की तरफ रागब करता है? लेकिन देखिए, इस वक्त जो टैक्स का निज़ाम है ना आपका, आपको हौसला अफजाई नहीं करता, आपकी हौसला शिकनी करता है। वो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम, देखिए एक्सपोर्टर माल बेचता है पाकिस्तान से बाहर, उसकी आमदन को आपने टैक्स कर दिया नॉर्मल रेट पे। पहले एक वक्त था चले एक्सपोर्टर के ऊपर आप 1-1.5% टैक्स लेते थे, एक्सपोर्टर को आपने इंसेंटिव दिया ही नहीं हुआ। एक्सपोर्टर तो अब बेचारा हर वक्त टैक्स वाले महकमे को भुगतता रहता है, अपने खाते पेश करता रहता है वहां पर। आपने एक्सपोर्टर को तो किल कर दिया। एक्सपोर्ट्स को किल करने में इस टैक्स का निजाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने जो उसका टैक्स कटता है उसको मिनिमम टैक्स रजीम कर दिया। मैं फिर हुकूमत से मुतालबा करूंगा, अगर एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है, एक्सपोर्ट्स को प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम में लेके जाएं और एक्सपोर्टर को सस्ता कर्जा दे, एक्सपोर्टर को सस्ती बिजली दें। एक्सपोर्टर तब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। अदरवाइज तो ये आप क्या कर रहे हैं, वो चाइनीज गाड़ियां मंगवाने के लिए असेंबलिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, जिससे आपका कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक नहीं हो सकता। अच्छा उमर साहब, आप क्योंकि टैक्स को बेहतर जानते हैं, इतना रिलीफ हुकूमत ने एक्सपोर्टर टेक्सटाइल सेक्टर को दिया, जीरो सेक्टर को दिया। अगर यही रिलीफ अगर मीडियम और स्मॉल मीडियम लोगों को, छोटे छोटे कारखानों को दिया जाता तो आज हम कहाँ खड़े होते? सर गुजारिश ये है कि पहली बात तो टेक्सटाइल वालों का रिलीफ खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि टेक्सटाइल सेक्टर को हमने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, वो एंजॉय करते रहे इस रिलीफ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाए। ये आपका इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट था पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए। इसी की वजह से तो हमारी एक्सपोर्ट्स कई सालों से यहाँ पर कम है, या 2022 के बाद तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं। आप देखें, बात समझने की कोशिश करें। आप अभी IT वालों की एक्सपोर्ट के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, उनको भी आपने अभी भी फाइनल टैक्स का बेनिफिट दिया हुआ है। सर्विसेज की एक्सपोर्ट पर आज भी टैक्स का रेट 0.25 से लेकर 1% है। तो ये इस तरह वाली एक्सपोर्ट को, जो मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, आप समझें टेक्सटाइल इस पाकिस्तान में सबसे बड़ा रोजगार प्रोवाइड करता है। इट इज अ बिगेस्ट सेक्टर जो कि लोगों को रोजगार दे रहा है। आप खाली टैक्स को ना देखें, ये अगर मुल्क में मईशी तरक्की करनी है, मईशी लोगों को रोजगार मिलेगा। आप इस वक्त 42% से 47% लोग खत्ते गुर्बत की इंतहाई सतह से नीचे आ चुके हैं। आप मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा करे। आजकल लोगों के हालात इतने तंग हैं, जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाते हैं उससे पूछे तो सही। हमारे 70% मुल्क की आबादी ज़राअत पर मुश्तमिल है। सरमायाकार को देखा जाए, अवाम को देखा जाए, जो सरमायाकार है वो ऊपर जा रहा है और जो ज़राअत से वाबस्ता वो नीचे जा रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है, ज़राअत का जो टैक्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो 2% करीब है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुआशी, अगर हम मुआशरत को, GDP को देखते हैं, सबसे ज़्यादा किरदार तो उनका है। फिर हम ये इसको जो तजाद है, इसको जो फासला है, उसको दूर कर सकते हैं। आप दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। ज़राअत के अंदर प्रॉब्लम क्या है? ज़राअत के अंदर 83% जो रकबा है ना आपका, 83% रकबा, वो उसको हम कहते हैं अनफिजिबल होल्डिंग। अनफिजिबल होल्डिंग से मुराद क्या? 12.5 एकड़ से कम लोग हैं। वो उन लोगों के पास रकबा है जिनकी होल्डिंग 12 एकड़ से कम है। दुनिया की कोई भी किताब कहती है 12 एकड़ से कम रकबे वाला बंदा इनकम टैक्स की ब्रैकेट में नहीं आ सकता, वो अपना खर्चा ही नहीं निकाल सकता। 12 एकड़ से कम वाला जितना ज़राअत का जिसने रकबा रखा हुआ है ना, वो किसी सूरत भी टैक्सेबल इनकम नहीं जनरेट कर सकता। इसलिए ये मिथ खत्म कर लें कि ज़राअत पर टैक्स नहीं है। ज़राअत के ऊपर पिछले साल पंजाब हुकूमत ने ज़रूरी इनकम टैक्स लगाया, जिसका रेट फेडरल FBR से भी ज्यादा रख दिया था, और वो अभी परसों पंजाब असेंबली ने वापस लिया है। कहने का मतलब ये है कि 12 एकड़ से ऊपर जो 17% जिम्मेदार है, बड़ा जिम्मेदार आप कहते हैं, वो 17 से 18% लोग हैं। बाकी तो सारे बेचारे नॉन टैक्सेबल हैं, वो तो बिलो टैक्सेबल लिमिट के ब्रैकेट में आते हैं, उनको क्यों टैक्स लगाना है? फिर वही बात है, ये ज़राअत है जिसने आपके माशरे में अमन, ईमान और बेयकीनी ख़त्म की हुई है। ज़्यादातर लोग जो ज़राअत से वाबस्ता, उनके जानवर अपने होते हैं, उनका घर का कनक अनाज मिल जाता है उन्हें, और उससे हमारा माशरे में एक बेयकीनी ख़त्म होती, बेचैनी नहीं होती। अगर यही लोग बेचैन हो जाए तो आपकी हुकूमत नहीं, ये तो आपका माशरा नहीं खड़ा हो सकता। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, जो टैक्स निज़ाम है हमारा, अगर टैक्स कवानीन इंसाफ पर मबनी नहीं है टैक्स पेयर के साथ, तो 78 साल में हमने क्या फैसला किया? हमने अपने मुल्क को चलाने के लिए हमें ज़राअत पर इंसार करना है या इंडस्ट्री पर इंसार करना है, तो इसका सोल्यूशन तो हुकूमत के पास है या मजबूर है कर्ज जो लेंडर हैं उनकी शराइत के ऊपर? पहली बात तो आज तक कभी ये फैसला ही नहीं कर सके कि हमने ज़राअत पर इंसार करना है या इंडस्ट्री पर करना है, और ये भी अब बहस है ही नहीं है। आपको अपनी ज़राअत को भी जदीद खतूत पे लेके जाना है, अपनी इंडस्ट्री को भी आपको बहुत आगे लेके जाना है। अदरवाइज पाकिस्तान के लिए इस वक्त माशी मसाइल बेइंतहा ज़्यादा है। उमर साहब, जैसे हालात अब मुल्कों की जंगों के बाद हुए हैं, इन्वेस्टर निकलता जा रहा है, इनको पाकिस्तान की तरफ राग़ब तो किया जा सकता है। अगर $100 की बात करें तो वैसे भी इन्वेस्टर बहुत आ सकता है। ग्वादर का इंसेंटिव देते, यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन
जोन बनाते, एक डीपर पोर्ट बनाते, दुनिया को कहते हैं यहाँ पर आके काम करो, कराची के ऊपर आप करते। वो तो ना हुकूमत ने और ट्रांसशिपमेंट का जो मुआहदा किया है वो हब बना लिया, अब तो वो अच्छा हो गया। उसका पूरा ग्वादर को एक टैक्स फ्री सिटी बना दें, बाकी पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक खत्म कर दें। आप उसको अंदर लोगों को दे कि जी आप यहाँ पर लगा के पैसा लगाएं, यहाँ से आपका डॉलर में पैसा बाहर जाएगा बगैर किसी रुकावट के, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे बगैर किसी टैक्स के। आप देखें कैसे नहीं पाकिस्तान के अंदर अंबार लग जाएगा डॉलरों का, ये आपको करना पड़ेगा। आप नए हार्म्स जिसको आज दुनिया जान रही है, ये मुस्तकबिल ग्वादर का नहीं है। ग्वादर इससे भी बेहतर है, डीप सी पोर्ट बनाए यहाँ पर। मैं कहता हूँ आप देख, आपको लेकिन बनाना इसको टैक्स फ्री पोर्ट पड़ेगा आपको वहाँ, वरना पाकिस्तान में पैसा कोई नहीं लगा। और इसके अंदर स्पेशल आपको लॉ लाना पड़ेगा कि जो ग्वादर की पोर्ट अथॉरिटी के अंदर हदूद में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको वापस ले जाने से वक्त डॉलरों का रुकावट नहीं होगी, जितने वो लाएगा प्रॉफिट समेत ले जा सकते। उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। ना पाकिस्तान से पैसा बाहर जा सकता है और ना ही कोई आ सकता है, उनके लिए पॉलिसीज़ हैं, कानून है, उनके मुताबिक जो कुछ होता है। लेकिन पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ग्वादर पर इंसार है। अगर ग्वादर को टैक्स फ्री कर दिया जाए तो उमर साहब के मुताबिक हमारे मुल्क में किसी चीज़ कमी नहीं है, टैक्स अदा भी कुछ नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा हम कमा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।